requested that you found the mock test reading to be difficult. I am going to solve it in front of you. I'm going to share the solution with you, but before that, I will share the reading. The section 3, the section that most of you found difficult. I'll put each paragraph on the screen for 5 to 10 seconds and will also show the questions related to it. You can pause the video to read these paragraphs and solve these questions. So questions on the right hand side and paragraphs on the left hand side. You can also take the screenshot of these questions and solve them separately. So now we will move on to the solution. So I have marked the parts of the paragraph with the parts of the questions with the same color. Also, I have marked the important parts, some in red and some in yellow. This is question number 27. It's the first question that we face, but this is not the first question that we should solve. Why? The first thing that we should look at are the questions. And if we go and look at the questions, question number 27 to 31 are about the Montreal study. Okay. Let's move ahead. Questions 32 to 36 are about all the different things in different paragraphs. So they have mentioned these paragraphs. What does the writer emphasize in the first paragraph on the Montreal study in the second paragraph? All of these paragraphs are covered in these questions. Question number 37 to 40 again covers almost all the paragraphs. These are the questions that we should be looking at first. Question number 32 to 36.
as these are multiple choice questions, and after we have solved them, we would easily be able to solve these questions. 37 to 40. The question number 27 to 31, these questions, we should look at as soon as we reach the paragraph about the Montreal study. This is the first thing that we should solve when we are at that paragraph. So the first paragraph, solution of the first question, question number 32. It asks, what point does the writer emphasize in the first paragraph? So we have to find the point. To do that, what we should do is read the entire paragraph. And if you look at the paragraph, it is mentioned that music, although does not has a language, but yet it touches us deeply. So how does it do that? Let's look at here. Pupils in our eyes dilate, a physical feature. Pulse and blood pressure rise, again a physical thing. Electrical conductance of our skin is lowered, again physical, skin is a physical thing. Cerebellum, which is the region in the brain, they have mentioned it, becomes strangely active, again physical. Blood is even redirected to the muscles in our legs, that again is physical. So these are the physical reactions of our body to music. If you look at question number 32, the B choice says how intense our physical responses to music can be. This is exactly what this paragraph informs us about. Mostly it is about the same thing. It starts with that it is devoid of language. Why does it mention this point? Just to support that even though it is devoid of the language, it still has deep physical implications on our body. This devoid of the language is a supporting point, and the main point is this physical responses. Go to question number 33 now. This we will do after we have solved the MCQs, because now we are at the Montreal study. How we know that? The recent paper in neuroscience by a research team in Montreal, Canada. Now we know that we are at the Montreal study. So it talks about all these things, marks an important step in repealing. You must have read this. So why is it important to read the fill in the blanks? Because it informs you about the location of this particular summary in the passage. These fill in the blanks are usually summaries, usually not usually, but every time rather. These are the summaries of a passage. It starts from this place. Bring in their playlist of favorite songs. Virtually every genre was represented, from techno to tango, and played them the music while their brain activities was monitored. So subjects were asked to bring in their playlist and they were asked to play music. Same thing is mentioned here. Participants who were recruited for the study through advertisements had their brain activity monitored while listening to their favorite music. Okay. So their brain activity was monitored while they were listening to their favorite music. Here it is mentioned in detail here as a summary. So what was noted? After that they mentioned all these things, but it was noted that they discovered same thing. It was noted that and they discovered is that music triggers the production of dopamine. Music से dopamine की production बढ़ जाती है. Same बात यहाँ लिखी हुई है. The music stimulated the brain's neurons to release a substance. Dopamine क्या है? हार्मोन है, substance है. तो म्यूजिक स्टिमुलेट कर देता है ब्रेन की न्यूरॉन्स को एक चीज का रिलीज बढ़ाने से. वो चीज क्या है यहाँ मेंशन हुई है, इसका बढ़ा देता है प्रोडक्शन डोपामीन का. यहाँ पे वो लिखा है कि जो ब्रेन है वो इस चीज का प्रोडक्शन बढ़ा देता है. वो चीज क्या है? डोपामीन. और कहाँ बढ़ा देता है? कहाँ बढ़ा देता है? इन टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विच आर एसोसिएटेड विद फीलिंग. दो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में यहाँ जो कि एसोसिएटेड है कुछ चीज की फीलिंग से.
इस चीज की फीलिंग थी वो हमने ढूंढना है। यहाँ लिखा है इन बोथ द डोर्सल एंड वेंट्रल। अब ये नाम दिए हुए हैं, इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि हमारे को ये पता करना था दो पार्ट है, दो पार्ट दिए हैं, बोथ से पता लग रहा है दो पार्ट है। रीजन्स ऑफ द ब्रेन, बोथ द रीजन्स ऑफ द ब्रेन, तभी मैंने उसको मार्क नहीं किया। एज दीज टू रीजन्स हैव लॉन्ग बीन लिंक्ड विद, किसके साथ लिंक किया गया इनको? लिंक्ड विद एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर। फीलिंग किसकी? प्लेजर की फीलिंग की। इन दोनों पार्ट्स के क्या लिंक है? बोथ द रीजन्स ऑफ द ब्रेन लिंक्ड विद एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर। देखो मैंने भी समरी टाइप इसको मार्क किया। तो ये जो दोनों पार्ट है ये फीलिंग प्लेजर के साथ लिंक्ड है, एसोसिएटेड विद फीलिंग प्लेजर। अगर यहाँ ऑफ क्यों नहीं लगेगा? यहाँ द लगा होना चाहिए, इसीलिए ऑफ प्लेजर नहीं होगा, सिर्फ प्लेजर रहेगा। अगर विथ के साथ द लगा होता, विद द फीलिंग ऑफ प्लेजर, तो फिर आ जाता। पर यहाँ फीलिंग क्या है? फीलिंग वर्ब है, तो यहाँ से डायरेक्टली फीलिंग प्लेजर आ जाएगा। द इसको क्या बना देता है? फीलिंग ऑफ प्लेजर को एक नाउन बना देता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, नाउन नहीं है, यहाँ पे फीलिंग है, यहाँ पे वर्ब है, तो इसके साथ डायरेक्टली प्लेजर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे वो द रिसर्चर्स आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द न्यूरॉन्स इन द एरिया ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द, कौन से एरिया ऑफ द ब्रेन जिसका कुछ नाम है, वर पर्टिकुलरली एक्टिव। कॉल्ड द से हमें पता लग जानी चाहिए कोई नाम ढूंढ रहे हैं, तो जब भी कोई नाम आएगा तो हमारा उस पर अटेंशन आ जानी चाहिए। वर पर्टिकुलरली एक्टिव जस्ट बिफोर द पार्टिसिपेंट्स फेवरेट मूवमेंट इन द म्यूजिक। तो कुछ जो न्यूरॉन्स थे किसी पार्ट में, अब वो पार्ट का नाम ढूंढना है मेरे को, वो एक्टिव हो जाते हैं पार्टिसिपेंट के फेवरेट म्यूजिक मूवमेंट्स में, म्यूजिक में जो उनके फेवरेट म्यूजिक मूवमेंट्स आते हैं उससे पहले पहले। विच पार्ट इज दैट? तो हमें क्या करना होता है, हमें पैराग्राफ टू पैराग्राफ रीडिंग करनी होती है। ये अगर आप ऐसे सॉल्व करने बैठ जाओगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है इसको। पहले ही से आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा होना चाहिए, अब इसको सॉल्व करने आओ। अब आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि वो किस तरह समरी बनाई हुई है उन्होंने। आप अगर क्वेश्चन देख के इसको सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन समझोगे फिर इसके बाद इसको समझोगे। अगर ये यहाँ से समझने लगा फिर आगे पढ़ोगे, फिर पीछे से पढ़ोगे, सीधा सीधा इसको पूरा पढ़ो और सीधा सीधा मार्क करो, क्योंकि आपको बेसिक समरी समझ लग जाएगी। तो वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज मोर रादर मोर सिग्निफिकेंट इज द फाइंडिंग दैट द डोपामाइन न्यूरॉन्स इन द कोडेट न्यूरॉन्स इन द एरिया ऑफ द ब्रेन कॉल्ड, जिस तरह न्यूरॉन्स मेंशन किए थे यहाँ पे भी न्यूरॉन्स मेंशन किया, क्या नाम है उस ब्रेन के एरिया का? कोडेट। कैसे पता लगता है? जो जिस जगह पे एक्टिव हो जाते हैं पार्टिसिपेंट के फेवरेट म्यूजिक में। तो ये भी लिखा होना चाहिए, रीजन ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस एंड इन एंटिसिपेटिंग फूड एंड अदर रिवॉर्ड स्टिमुलाई वर एट देयर मोस्ट एक्टिव बिफोर द पार्टिसिपेंट्स फेवरेट म्यूजिक मूवमेंट्स। तो जो कोडेट में न्यूरॉन्स थे वो कोडेट ही रहा जहाँ पे न्यूरॉन्स सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं फेवरेट मूवमेंट से पहले, ठीक है। तो कोडेट के न्यूरॉन्स ही सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इस पीरियड का क्या नाम होता है? द रिसर्चर्स कॉल दिस नोन एज, अगेन कॉल्ड, नाम ढूंढ रहे हैं रिसर्चर्स इस पीरियड को क्या कहते हैं? द एंटिसिपेटरी फेज। द एंटिसिपेटरी फेज, द ऑलरेडी दिया हुआ है तो आंसर लिखेंगे एंटिसिपेटरी फेज। देख चुके हैं कि दो वर्ड्स ही लिखने आंसर में, तब भी एंटिसिपेटरी फेज ही बन रहा है। Activity in this part of the brain is associated with the expectation of reward stimuli such as, तो कौन से रिवॉर्ड स्टिमुलाई? एक एग्जांपल देना हमारे को, अलग अलग रिवॉर्ड स्टिमुलाई होंगे पर एक एग्जांपल देना ऐसे कोई रिवॉर्ड स्टिमुलाई का जिसकी एक्सपेक्टेशन पे ये जो एक्टिविटी है इस पार्ट ऑफ द ब्रेन में वो इन्वॉल्व है। इधर इन्होंने दिया हुआ था। यूजुअली आप देखेंगे कि आइल्स में पीछे जाके नहीं होता आंसर, पर कई बार हो भी जाता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पीछे जाके आंसर नहीं होगा, तो कई बार अगर नहीं आगे मिल रहा, कोई ऐसा कोई भी आंसर आगे सूट नहीं कर रहा था तो ये पीछे जाके था। A region of the brain involved in learning stimulus response associations and in anticipating, expectation of reward, anticipating, okay, reward, food and other reward stimuli, food और बाकी reward stimuli। तो एक एग्जांपल जो reward stimuli का क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर आ गया food, फूड। अब आ जाते हैं
हमारा इसी पैराग्राफ से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी सॉल्व हो रहा है। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, so what view of the Montreal study does the writer express in the second paragraph? ये हम सेकंड पैराग्राफ पे आ गए, तो क्या मॉन्ट्रियल स्टडी का व्यू सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्रेस करता है? तो अगर हम पहले, जरूरी नहीं है कि आंसर मिले हर बारी, आंसर क्या नहीं है उससे भी आप मार्क कर सकते हैं, उसे कहते हैं एलिमिनेशन। तो एलिमिनेट करें। इट एम्स वर वेरी इनोवेटिव, ये कहीं नहीं दिया हुआ था कि उसकी एम्स बहुत इनोवेटिव थे। द अप्रोच वाज टू सिंपलिस्टिक, यहाँ जरूर बोला हुआ था कि अप्रोच जो थी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, पर itself was rather straightforward. The experiment itself was rather straightforward, पर ये बोला नहीं था कि बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक थी। ठीक है, ऐसा नहीं बोला था कि बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक थी। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके लिए बोलने की जो बोला था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ये मेंशन किया था कि ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत फैंसी टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज की थी। तो इसके लिए वो बताने के लिए कि पर ऐसा इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो इसकी अप्रोच थी वो फिर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। उन्होंने ये नहीं बोलना चाहा था कि ये बहुत ज्यादा सिंपल थी। उसके बाद इसको छोड़ देते हैं। द टेक्नोलॉजी यूज्ड वाज अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स, उन्होंने ये जरूर बोला था कि फैंसी टेक्नोलॉजी थी, पर उन्होंने अननेसेसरीली नहीं बोला था, बल्कि उनको उसका फायदा हुआ। आगे यहाँ बताते हैं वो, बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट वर कंबाइनिंग मेथोडोलॉजीज पीईटी एंड एफएमआरआई, ये जो टेक्नोलॉजीज उन्होंने बताई थी यहाँ पे, इसका फायदा हुआ उनको। दे वर एबल टू ऑब्टेन एन इम्प्रेसिवली एग्जैक्ट एंड डिटेल्ड पोर्ट्रेट ऑफ म्यूजिक इन द ब्रेन। तो एग्जैक्ट एंड डिटेल्ड, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट और डिटेल्ड उनको एनालिसिस मिली म्यूजिक के पोर्ट्रेट की ब्रेन में। ठीक है, तो वो प्रिसाइज रिसर्च कर पाए, जो कि यहाँ दिया हुआ है, इट प्रोड्यूस सम बिकम रिमार्केबली प्रिसाइज डाटा। ये नहीं होता, ये नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, इसमें अननेसेसरी दिया है, इसमें 2 दिया है, और ये तो था ही नहीं, फिर अपने पास सी बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे, व्हाट डज द राइटर फाइंड इंटरेस्टिंग अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द मॉन्ट्रियल स्टडी? तो इंटरेस्टिंग क्या था वो ढूंढना है। ये जो कीवर्ड्स हैं उससे आप आंसर नहीं मिल सकते, पर हमें लोकेशन मिल जाएगी। तो लोकेशन के लिए हमारे को ये देखना है कि इंटरेस्टिंग क्या था। तो इन्होंने बोला कि दिस फाइंडिंग इजंट पर्टिकुलरली सरप्राइजिंग, तो ये वाला पैराग्राफ में तो नहीं है ये वाला फाइंडिंग, क्योंकि सरप्राइजिंग नहीं थी तो इंटरेस्टिंग नहीं थी ऑब्वियसली। पर यहाँ वो बोलते हैं व्हाट इज रादर मोर सिग्निफिकेंट, ऑब्वियसली जो ज्यादा सिग्निफिकेंट है वही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, तो लोकेशन मिल गई। तो क्या चीज सिग्निफिकेंट है? इज द फाइंडिंग दैट डोपामाइन न्यूरॉन्स इन द कोडेट अ रीजन ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्वड इन लर्निंग स्टिमुलस रिस्पांस एसोसिएशन। अब आप ये सारा पढ़ने बैठ जाएंगे, आपको सारा पढ़ना है, पर इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको एक साथ समझने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या की, पॉइंट क्या बोला इन्होंने, मेन बात क्या की इन्होंने, कि जो न्यूरॉन्स इन द कोडेट है, ये रीजन ऑफ द ब्रेन भूल जाइए। ठीक है, रीजन ऑफ द ब्रेन भूल जाइए, क्योंकि वो कोडेट की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं डैश, ये कोडेट की एक्सप्लेनेशन दी है कि वो क्या होता है। तो इसकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमें फाइंडिंग से ढूंढनी है। तो क्या है, न्यूरॉन्स इन द कोडेट वर एट देयर मोस्ट एक्टिव अराउंड 15 सेकंड्स बिफोर द पार्टिसिपेंट्स फेवरेट मूवमेंट्स इन द म्यूजिक। न्यूरॉन्स इन द कोडेट को सिर्फ ये सारा हटा दीजिए, ये सारा भूल जाइए, सारा भूल जाइए, ये सिर्फ येलो येलो पे आइए। न्यूरॉन्स इन द कोडेट वर एट देयर मोस्ट एक्टिव अराउंड 15 सेकंड्स बिफोर द पार्टिसिपेंट्स फेवरेट मूवमेंट्स इन द म्यूजिक। सबसे ज्यादा एक्टिव कब थे? पार्टिसिपेंट्स के फेवरेट मूवमेंट्स में, म्यूजिक के जो फेवरेट मूवमेंट्स थे उससे। तो ये टाइम का मेंशन हुआ है 15 सेकंड पहले, तो ये डायरेक्टली अपना आंसर यही बन जाता है, द टाइमिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स न्यूरल रिस्पॉन्स टू द म्यूजिक। सबसे ज्यादा क्या चीज सरप्राइजिंग थी, क्या चीज इंटरेस्टिंग थी, सबसे ज्यादा क्या चीज सिग्निफिकेंट थी, कि जो न्यूरॉन्स थे कोडेट में, ठीक है, वो 15 सेकंड पहले एक्टिव हो जाते थे। ये जो टाइमिंग थी, क्योंकि वो 15 सेकंड पहले एक्टिव हो जाते थे, कि अभी उन्होंने गाना सुना भी नहीं है, अभी गाने के फेवरेट मूवमेंट आए नहीं है, पर न्यूरॉन पहले एक्टिव हो गया। वो फाइंडिंग सरप्राइजिंग थी, वो फाइंडिंग इंटरेस्टिंग थी उनकी। तो टाइमिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट न्यूरल रिस्पॉन्स टू द म्यूजिक, तो जो टाइमिंग थी उनके रिस्पॉन्स की वो थी। ठीक है, अब ये देखिए इम्पैक्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ये दिया नहीं हुआ, इमोशनल स्टेट सेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स व्हिच वाज एक्टिवेटेड बाय द म्यूजिक। तो काफी सारे ये मार्क कर देंगे, क्योंकि कोडेट का नाम दिया और उन्होंने ये पढ़ा होगा, रीजन ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्वड इन लर्निंग, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं था। कोडेट के बारे में जो बात की हुई है वो सिग्निफिकेंट है। यहाँ तो सिर्फ आपको बताया कोडेट कौन है, क्या चीज़ है, ये इसके लिए बताया, क्योंकि आपको क्या पता कि वो क्या है, तो आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे ये क्या लिख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने डायरेक्टली ये बात सिर्फ आपको बताई है।
तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। Why does the writer refer to Myers' work on music and emotion? तो मायर्स का अगर हम पढ़ते हैं, जब आपने पढ़ा होगा मायर्स का, तो आप देखेंगे कि सेम पॉइंट्स जो दिए हुए थे जो मॉन्ट्रियल स्टडी वाले, की जो आपका जो न्यूरॉन्स हैं वो इसके लिए एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि जैसे कि इन मॉन्ट्रियल स्टडी में दिया हुआ था न्यूरॉन्स जो इसके लिए एक्टिवेट होते हैं क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ बढ़िया आने वाला है। और अगर आप सेम वो एंटिसिपेशन नहीं लगते, आप म्यूजिक को सेम सेम बना देते हैं तो वो म्यूजिक आपको अच्छा नहीं लगता। तो वो जो एंटिसिपेशन है वही मेन पॉइंट है। यही पॉइंट सेम मायर के वर्क में भी दिखाया था कि जो एंटिसिपेशन है, कि जो आपको लग रहा है कि एक अच्छा पॉइंट कि मेरा फेवरेट पीस आने वाला है, जो मेरे को पसंद है वो आने वाला है, या फिर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा आपको म्यूजिक में, आप कह रहे हैं कि ये कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो वो जो ये कब आएगा और ये जो एंटिसिपेशन है, यही है दोनों का पॉइंट। यही है इंपॉर्टेंट म्यूजिक में सबसे ज्यादा चीज, ये एंटिसिपेशन। दोनों यही पॉइंट कर रहे हैं, तो वो सपोर्ट कर रहा है, तो बी आया था इसका डायरेक्टली। ठीक है, तो आगे अकॉर्डिंग टू लियोनार्ड मेयर, व्हाट कॉजेज द लिसनर्स द इमोशनल रिस्पॉन्स टू म्यूजिक? इमोशनल रिस्पॉन्स कैसे हो जाता है म्यूजिक का मेयर के अकॉर्डिंग? जो भी बंदे का प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ आ जाते हैं। ये मेयर के वगैरह का पैराग्राफ है, देखो अकॉर्डिंग टू मेयर, अकॉर्डिंग टू लियोनार्ड मेयर। आगे हम पैराग्राफ ले, लोकेशन मिल गई। तो इमोशनल रिस्पॉन्स किस पे होता है? ठीक, तो वो कहते हैं, पहला बोलते हैं द वे दैट म्यूजिक इवोक्स फॉरगेनेट मेमोरीज इन द लिसनर, ये मेंशन नहीं किया हुआ। अगला वो बोलते हैं द एसोसिएशन ऑफ सर्टेन म्यूजिकल कॉर्ड्स विद सर्टेन फीलिंग्स। तो ये मेंशन है, ये जरूर मेंशन है, पर ये बोला हुआ है कि ये पुरानी स्टडीज में था। While earlier theories of music focused on the way sound can refer to the real world of images and experiences, its connotative meaning। तो ये जो था ये दिया हुआ है, ये जरूर है, अगर आप ये समझते हैं, ये समझ पाते हैं तो, अगर नहीं समझ पाते तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी इंग्लिश की, अगर आप समझ पाते हैं तो ये दिया हुआ है बी, पर ये पुरानी स्टडीज में दिया हुआ है तो ये बी नहीं होएगा। ठीक है, सिर्फ दिया हुआ है तो उससे आप मार्क नहीं कर लेना, क्या दिया हुआ है उसमें, पुरानी स्टडीज में। The listener's sympathy with the composer's intention, दिया नहीं हुआ। Internal structure of the musical composition, तो ये दिया हुआ है, दिखाता हूँ कैसे। Mayer argued that the emotions we find in music come from, क्योंकि इन emotions के बारे में ढूंढना था, unfolding events of the music itself। मतलब म्यूजिक के जो इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी ऊपर गई कॉर्ड, अभी नीचे गई, अभी ड्रॉप आया म्यूजिक में, अभी राइज हुआ, तो ये इवेंट्स है उसके अलग अलग, उसके कारण बनते द पैटर्न्स द सिम्फनी इन्वोक्स एंड देन इग्नोर्स। जो पैटर्न सिम्फनी पहले अपनाती है फिर छोड़ देती है, तो वो पैटर्न के कारण हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स बनता है। बीच में हमने देखा होगा म्यूजिक में कभी कभी वो बहुत लाउड जा रहा है, फिर एकदम से ड्रॉप आ जाती है, बीट ड्रॉप हम सबको पसंद है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है म्यूजिक में, वो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स उस पर बनाती है। तो ये हर तरह के म्यूजिक में जो अच्छा म्यूजिक है यही होएगा। ठीक है, तो म्यूजिक अपना ही जो इंटरनल उसकी कंपोजिशन है, जिससे वो राइज कर रहा है, फिर लो पे जा रहा है, फिर एक तरह का म्यूजिक प्ले करके फिर बंद कर देता है, वो उस तरह का म्यूजिक प्ले करना, उस तरह की कॉर्ड्स नहीं प्ले करता है, वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट है। तो ठीक वो बोल आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40। ये हमारे पहले ही क्वेश्चन जो सॉल्व हुए हैं उनके कारण ही ये क्वेश्चन अगले भी सॉल्व हो जाने चाहिए। 37, और एक और चीज, एक और टिप, जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो आंसर्स यूजुअली ज्यादा होते हैं और क्वेश्चंस कम होते हैं, तो जो जो हो जाता है उसको मार्क कर दीजिए पहले से ही, मतलब आंसर्स में भी, ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको लगे, आपको पता होना चाहिए आंसर मार्क हो चुका है, अंटिल अनलेस ये ना लिखा है कि दोबारा आप कर सकते हो इसको यूज। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा हुआ था तो आप इसको कर देंगे। ठीक, तो द मॉन्ट्रियल रिसर्चर्स डिस्कवर्ड दैट, तो मॉन्ट्रियल रिसर्चर्स ने क्या डिस्कवर किया, सेम वहीं पे हम आगे, उन्होंने ये डिस्कवर किया न्यूरॉन एक्टिविटी इंक्रीजेस प्रायर टू की पॉइंट्स इन म्यूजिकल पीस। उन्होंने कहा पर एट देयर मोस्ट एक्टिव, जो न्यूरॉन्स थे इस रीजन में, कोर्टेक्स में सबसे ज्यादा एक्टिव थे कब, बिफोर 15 seconds बिफोर द पार्टिसिपेंट्स फेवरेट मूवमेंट्स इन द म्यूजिक। जो उनका फेवरेट म्यूजिक मूवमेंट्स थे म्यूजिक में, उससे 15 सेकंड पहले। उसके बाद आते हैं 38 पे,
मैनी स्टडीज हैव डेमोस्ट्रेटेड दैट, बहुत सारी स्टडीज ने क्या किया, मैनी स्टडीज, न्यूमरस स्टडीज आफ्टर ऑल हैव डेमोस्ट्रेटेड दैट, क्या डेमोस्ट्रेट किया, डोपामाइन न्यूरॉन्स क्विकली अडैप्ट टू प्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स। जो डोपामाइन न्यूरॉन्स हैं वो जल्दी से अडैप्ट कर लेते हैं प्रिडिक्टेबल, जो रिवॉर्ड्स पता होते हैं उनको कि आने वाले हैं उससे, तो उनको फिर उससे मजा नहीं आता। तो फिर बी आंसर बन जाता है, न्यूरॉन एक्टिविटी डिक्रीजेस इफ आउटकम बिकम्स प्रेडिक्टेबल। तो न्यूरॉन एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है अगर आउटकम हमें पता है क्या होने वाला है, क्योंकि वो अडेप्ट कर जाते हैं डोपामाइन न्यूरॉन्स। 39 मेयर्स एनालिसिस ऑफ बीथोवेन्स म्यूजिक शोज दैट, तो हमें आपको मेयर्स एनालिसिस ऑफ बीथोवेन्स म्यूजिक पे जाना पड़ेगा, ये है एरिया, या मेयर की एनालिसिस ऑफ बीथोवेन्स म्यूजिक दिया हुआ है देखिए। तो उसने क्या शो किया, इट want to preserve an element of the uncertainty in his music, making our brains beg for the one chord he refuses to give us. Beethoven saves that chord for the end. Beethoven जो है वो हमारे जो ब्रेन है उसको बैक करने को फोर्स करता है कि ये जो कॉर्ड है जो हमें चाहिए वो दे दो दे दो दे दो, पर वो एंड तक उसको प्ले नहीं करता। फिर इसका आंसर क्या बन जाता है हमारा, इमोटिव म्यूजिक डिलेज गिविंग लिसनर व्हाट दे एक्सपेक्टेड टू हियर। तो जो इमोटिव म्यूजिक है वो क्या करता है, लिसनर को वो नहीं देता जो वो चाहता है सुनना। जैसे उसने कहा कि बीथोवन वो वाली कॉर्ड नहीं प्ले करता एंड तक जो वो हर बंदा सुनना चाहता है, तो उसके कारण वो म्यूजिक जो होता है इंटरेस्टिंग हो जाता है उस एंटिसिपेशन के कारण। आगे भी सारी यही बात की हुई है जो हमने आगे पहले भी पढ़ ली। तो अर्लियर थ्योरीज ऑफ म्यूजिक सजेस्टेड दैट, यहाँ में हमने जिसके कारण हमने ये वाला मार्क नहीं किया था उसी के कारण अब हम ये वाला मार्क करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 अर्लियर थ्योरीज हमने पढ़ा था, देख ले वो ही जो ऊपर क्वेश्चंस हैं उनकी इंपॉर्टेंस है। अगर आपने वो ढंग से किए तो ये क्वेश्चंस 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाते सारे। Earlier theories of music focused on the way the sound can refer to the real world of images and experiences is connotative meaning। साउंड कैसे हमारे दिमाग में असली वर्ल्ड की इमेजेस और एक्सपीरियंसेस रिकॉल करा देती है, हमारे को यादें ले आती हैं उन सब की। तो सी मोटिव म्यूजिक कैन ब्रिंग टू माइंड एक्चुअल पिक्चर्स, रियल वर्ल्ड ऑफ इमेजेस आ गया, एक्चुअल पिक्चर्स एंड इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस आ गया, इवेंट्स। तो ये है, इस तरह से सॉल्व करने हैं। ये थे सारे आंसर्स। अगर आपको फाइल्स वगैरह चाहिए होगी, ये सॉल्व फाइल भी चाहिए होगी या फिर आपको नॉर्मल फाइल चाहिए, तो आप अगेन कॉन्टैक्ट